Hello students, today we are going to discuss all the question answers of the previous homework of this chapter 4 of class 7 civics. So first we will start with fill-ups. The very first question is good dash means our capacity to remain free from physical disorders. So इसमें हम put करेंगे health. We will fill blank with word health. Good health means our capacity to remain free from physical disorders. Next one is India is one of the biggest exporters of dash. So India is one of the biggest exporters of medicines. Next one is waterborne diseases are contagious. जितनी भी डिजीज होती हैं जो वाटर बॉर्न होती हैं दे आर कॉन्टाजियस, दे ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, so they are very dangerous also. Fourth one is a large number of medical tourists visit India every year for their treatment. Yes, India में as the medical facilities in our country are improving day by day, so there are numerous of people who visit India for their treatment. That's why it is known as medical tourism also. India has the world's largest number of medical colleges. Fifth one is India has the world's largest number of medical colleges. So I am repeating this once again. In the first fill-up we have to fill health, in second one medicines, third one contagious, in fourth one treatment, in fifth one we have to put largest and colleges. So now we are going to discuss all the question answers of this homework. First question is what do you understand by good health? So first we are going to discuss about health. हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हेल्थ के बारे में. So it is a very important question for you all. Good health means our capacity to remain free from physical disorder, illness or injuries. Several other factors also contribute to good health like clean drinking water, hygienic conditions, pollution-free environment, nourishing food and sound state of mind. So good health का मतलब है हमारी कैपेसिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजेनिक कंडीशंस, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, नरिशिंग फूड एंड साउंड स्टेट ऑफ माइंड, जिनका होना एक साउंड और हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. तभी हम हेल्दी कहला सकते हैं. दैट्स वाई गुड हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिसऑर्डर से फ्री होना नहीं होता, बल्कि ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे साउंड स्टेट ऑफ माइंड, इनके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Our next question is mention an essential and important function of public health care. पब्लिक हेल्थ केयर का एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल काम हमें बताना है. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. सो एन एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस सच एज पोलियो, मलेरिया, जॉन्डिस एंड डेंगू. आप देख सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पब्लिक हेल्थ केयर का, ऐसी किसी बीमारी को स्प्रेड आउट होने से रोका जाए जो सोसाइटी में स्प्रेड आउट हो सकती है. अभी आपके सामने सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड-19 का, जिसके लिए पब्लिक हेल्थ केयर गवर्नमेंट कितना काम कर रही है. सो इट इज़ एन एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर. Our next question is what is WHO, and it is a very important question for you all because WHO एक ऐसी एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में लोगों के हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करती है. ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है. सो इसे जानना बहुत ज़रूरी है. WHO stands for World Health Organization. It is a specialized agency of the United Nations which is responsible for international public health. लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऐसी कंट्रीज़ जिनकी इनकम बहुत कम है, दे आर वेरी पुअर, उन कंट्रीज़ में स्पेशली चिल्ड्रन और वहाँ के सिटीजन्स के हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव और इंडेवर्स ये करती है. सो इट इज़ अ स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस.
WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ए वर्ल्ड रिनोड ऑर्गेनाइजेशन। आप कहीं भी जाएंगे WHO के बारे में आपको सुनने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एजेंसीज इन द वर्ल्ड विच इज़ वर्किंग डे एंड नाइट टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर ऑफ द many nations including India also. Next question is, how the health standards reflect economical, social and moral well-being of a country? This question is a very important question because यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे ऐसी क्या बात है कि जिस कंट्रीज़ में उनका जो हेल्थ स्टैंडर्ड है जो बहुत हाई है, ये शो करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, सोसाइटी बहुत पीसफुली रह रही है, वहाँ पे कोई डिजीज़ का आउटब्रेक नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ लोगों का जो मोरल है वो बहुत हाई है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई हेल्थ स्टैंडर्ड्स रिफ्लेक्ट इकोनॉमिकल, सोशल एंड मोरल वेलबींग. If citizens of any nation is healthy, so we can say that healthy population lives longer. जिस कंट्री के लोग बहुत हेल्दी हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो एज होगी वो ज़्यादा होगी. दे विल लिव लॉन्गर एंड ऑल्सो दे आर मोर प्रोडक्टिव. दे कैन वर्क इन फैक्ट्रीज इन डिफरेंट फील्ड्स. As they are healthy, they can add more values to their economy. Human beings are the most important resource. Yes, you should know that human being जो है पूरे सारे resources में सबसे important resource है. क्यों? Because we are the resource जो दूसरे resources को अपने इस्तेमाल के लायक बना पाते हैं. That's why I have mentioned here human beings are the most important resources of all. If citizens of any country are healthy, so they can add more value to the economy. So अगर किसी कंट्री सिटीजन्स बहुत हेल्दी हैं तो उस कंट्री की इकोनॉमी में वो ज़्यादा वैल्यू को ऐड कर पाएंगे, एंड द सोसाइटी विल बी डिजीज फ्री एंड देयर विल बी नो फियर एंड एंजाइटी. As well as the society will develop in a very good manner and the morale of the nation will be very high. That's why we always talk about countries like America and Japan, जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, स्पेशली जापान वेयर द पीपल आर वेरी हेल्दी एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी लेस रिसोर्सेज. जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, इसके बावजूद भी आज जापान वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज़ में, वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज़ में आता है, बिकॉज दे हैव यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज इन अ गुड मैनर, बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज़ वेरी हेल्दी. Now the last question is, mention at least 3 facts about the present state of healthcare services in India. We know that we have read in the book there are various facts about the healthcare services in India, so we have to mention at least 3 facts here. First fact is, India is the world's largest producer and biggest exporter of medicines. आज इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन के मामले में, एज वेल एज वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग मेडिसिन टू द अदर कंट्रीज. इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. इंडिया इज़ हैविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड इन टर्म्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स पूरे वर्ल्ड में इंडिया के मेडिकल प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे हैं. यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज आर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेसेस इन द वर्ल्ड. In previous topic we have discussed that a large number of medical tourists visit India every year for their treatment, because day by day in India the medical facilities are improving, and due to this there are numerous people who are coming to India for their treatment, as this is a part of tourism but this is done for medical purposes, so this is known as medical tourism. This adds value to our economy. बाहर से जब लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं दे ऑल्सो पे अस, बहुत सारी इनकम कंट्री को मिलती है, एज वेल एज आर प्रोफेशनल्स आर वर्किंग वर्ल्ड वाइड. सो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है. रीज़न क्या है? डे बाय डे इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया इज़ इम्प्रूविंग. सो अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट आर विजिटिंग इंडिया एवरी ईयर फॉर देयर ट्रीटमेंट.
In such cases, we can see that how India is improving in healthcare services. Thank you.